Hello aspirants. In this video, we are going to discuss about complete economics का prelims का strategy. See, economics is the most important subject of UPSC prelims examination. इस वीडियो में we'll discuss how many questions are asked in UPSC prelims in the past 5 years. Then we would discuss important of classes, conceptual clarity in economics. Then we will discuss what books you need to study, then how to prepare current affairs of economics, then mock tests and previous year questions कैसे यूज करना है to score good marks in economics subject. So चलो शुरू करते हैं. See, if you see economics in 2018 22 questions are asked from economics. In 2019 20 questions are asked from economics in prelims exam. So in 2020 it is 15 questions. In 2021 it is 18 questions. In 2022 20 questions are asked from economics. So if you see the trend, like 15 to 20 questions are asked from the subject. So in 2023 prelims also you would be seeing somewhere between 18 to 20 questions from economics. See, economics से पूछना बनता भी है. See, हो सकता है कि in UPSC prelims like sometimes more questions are asked from geography, sometimes more questions are asked from environment, but another year there is a fluctuation, like very few questions are asked from environment or geography or history, etc. But the case doesn't happen with economics, क्योंकि दुनिया वर्ल्ड इज रन बाय इकोनॉमिक्स एंड मनी. सो इकोनॉमिक्स से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा. टेक एनी ईयर, so you can expect 18 to 20 questions in 2023 prelims also. So very important subject. So अभी चलते हैं कि important of classes and coaching in economics. See, generally I don't talk too much about coaching because ultimately you have to prepare for UPSC, and no amount of coaching, how good it can be, cannot help you in UPSC preparation if you are not doing a self study. So but economics के लिए क्या है कि coaching थोड़ा importance बढ़ जाती है because it is a technical nature. So concepts है, you need to understand concepts like appreciation, depreciation, balance of payment, current account, capital account, current account deficit, capital account deficit, demand and supply, GDP, GNP, inflation, government budgeting, then banking system like repo rate, reverse repo rate, CPR, CRR, SLR, bank rate, etc. All these concepts, or these are just examples. So you need to have good command over these concepts because prelims में there are questions based on these concepts. So for understanding these concepts, classes helps, and notes making, class notes का if you revise, then these concepts would get much better. क्लास में समझ लिया, क्लास नोट्स रिवीजन कर लिया. वो अगर एक चीज है कि मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट बी टेकिंग कोचिंग, सो if you are not taken coaching also, you can take separate economics का coaching, separate economics का coaching. Like coaching can be available with respect to an academy, like Ramesh Singh also provide separate coaching for economics, and Byju's वगैरह का if you get separate economics का classes, so you can टेक सेपरेट इकोनॉमिक्स का कोचिंग. इफ नॉट एंटायर कोचिंग के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए यू कैन टेक, और एल्स अगर क्लासेस भी नहीं लिया, वो भी नहीं लिया, सो यू कैन यूज यूट्यूब का, लाइक मृणाल सर का वीडियोस यू कैन टेक, और एनी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट लाइक ओनली IAS है, दे आर हैविंग मॉड्यूल, फ्री मॉड्यूल on economics. So you can watch these videos and get conceptual clarity.
सो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है। एंड ये जरूरी नहीं है कि इवन इफ यू आर नॉट टेकिंग दिस सेपरेट कोचिंग और एनी कोचिंग ऑल्सो, then also you can prepare. So then how you can prepare is standard book. So see, even if you take coaching, then also you must read standard book, or without coaching है तो you must have one standard source for economics. So with coaching also and without coaching also. So it is like with coaching और विदाउट कोचिंग, दोनों केसेस में स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए, बिकॉज 20 क्वेश्चंस वगैरह आ रहा है. सो यू कैनॉट प्रिपेयर ए सब्जेक्ट होलिस्टिकली विदाउट ए स्टैंडर्ड बुक. सो हो सकता है कि क्लासेस यू माइट हैव टेकन इकोनॉमिक्स का, बट हो सकता है कि क्लासेस में कितना ही कवर करेंगे. सो दे कैनॉट कवर एवरीथिंग इन क्लासेस. सो इट इज ऑलवेज good to have one standard book for every subject. And for economics, the standard book I recommend you is Nitin Singhania ka book. See, if you have not read any other book or in dilemma to choose which book, then go with Nitin Singhania. Or you have read already Sriram IAS ka book, then stick with Sriram IAS. Or some of you might be referring to Vivek Singh book, then stick to Vivek Singh book. Or some of you might be referring to Mrunal sir ka notes, class notes. So stick to Mrunal sir ka class notes. ठीक है. So I would recommend Nitin Singhania book. But if you are following these books and find these books better, then stick with these books. But the idea is whichever book you are reading, read and revise it at least 4 to 5 times before prelims. ये जो भी बुक है 4 to 5 times before prelims you need to revise. Like क्लास नोट्स पढ़ लिया, ये बुक भी 4-5 बार रिवाइज कर लिया. ठीक है, ये तो करना है. ये हो गया स्टैंडर्ड बुक का. देन चलते करंट अफेयर्स. हाउ टू कवर करंट अफेयर्स. सी, इफ इन प्रीलिम्स आल्सो, see there are 20 questions asked in prelims. So the thing is like हो सकता है कि 10 questions are standard book based और static based. ठीक है, standard और static based. एंड हो सकता है कि 10 questions है current based होगा. ठीक है, बट एटलीस्ट लाइक हो सकता है कि 60% स्टैंडर्ड होगा, स्टैटिक होगा, और 40% एटलीस्ट करेंट होगा. सो फॉर इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नीड टू फोकस ऑन करंट अफेयर्स. सो करंट अफेयर्स कहां से पढ़ना है? फर्स्ट इज विजन आईएएस का मंथली मैगजीन्स इकोनॉमी सेक्शन. ठीक है, इकोनॉमी सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू रीड लाइक 12 months का करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स का इकोनॉमी सेशन you need to study. ठीक है, like if exam is in May 2023, right? So May 2023 के लिए April 2022 से May 2022 तक. So इस सारे साल का करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन्स पढ़ना है. ठीक है, देन PT 365 of economy. Like some of you might be referring to PT 365. यह है कि either you are reading Vision IAS का monthly magazines economy section 12 months का, then no need to read PT 365. If you are not referring to monthly magazines, then you can refer to PT 365 of economy. Or if you don't prefer Vision IAS का monthly magazines, then you can read इनसाइट्स का मंथली मैगजीन्स और राउस का कंपास मंथली मैगजीन्स एक्सेट्रा. सो ये चीज भी यू कैन रिफर. देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल की विजन ही पढ़ना है. बट इफ यू आस्क मी, आई वुड रिकमेंड यू टू रीड विजन आईएएस का मंथली मैगजीन्स. ठीक है, ये बेसिक फंडा है. ओके, करंट अफेयर्स का ये. देन आता है मॉक टेस्ट. सी, मॉक टेस्ट देना है इकोनॉमी सब्जेक्ट वाइज का. जैसे विजन आईएएस का
like there might be 2 to 3 tests based on economics. So you can give those tests like Vision IAS का टेस्ट, देन विजन IAS का फुल लेंथ टेस्ट, उसमें इकोनॉमी सेक्शन का क्वेश्चंस, ठीक है, ये करना है. और फोरम IAS का टेस्ट लाइक इकोनॉमी का 2 टेस्ट होंगे और फुल लेंथ टेस्ट का इकोनॉमी सेक्शन का क्वेश्चंस. तो ये करना है. अब टेस्ट कैसे देना है, सी से यू हैव रेड, मान ले कि स्टैंडर्ड बुक लाइक नितिन सिंघानिया और क्लास नोट्स, लाइक से 1 week you might have read economy, ठीक है, 1 week you might have read economy, like economy में क्लास नोट्स रिवीजन कर लिया, एंड स्टैंडर्ड बुक लाइक नितिन सिंघानिया, ठीक है, श्रीराम IAS मटेरियल एक्सेट्रा, ये एक हफ्ते में ये दोनों चीज कर लिया. देन 7th डे और मोस्ट प्रोबेबली संडे में व्हाट यू नीड टू डू इज गिव ए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट. इकोनॉमी का एक टेस्ट दो, जैसे ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है ना, गिव 1 टेस्ट, जिन्हीं टॉपिक्स जो आपने पढ़ा है ना स्टैंडर्ड बुक से क्लास नोट से, उधर उसी बेसिस पे एक टेस्ट दो अच्छे से, एंड टेस्ट इवैल्यूएट करो, रीड सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉल्यूशंस अच्छे से पढ़ो. एंड कुछ टॉपिक्स है, हो सकता है कि दे आर नॉट कवर्ड इन स्टैंडर्ड बुक्स और क्लास नोट्स, लाइक चूज 10 to 15 questions like that and make notes of these. इनका नोट्स बना लो, लाइक एंड एंटायर इकोनॉमी का 20 to 30 पेजेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 20 to 30 पेजेस का नोट्स फ्रॉम मॉक टेस्ट. और ये जो 20 to 30 पेजेस का नोट्स होगा, ये ऐसा टॉपिक्स होंगे दे आर नॉट कवर्ड इन स्टैंडर्ड बुक्स, मतलब जो स्टैंडर्ड बुक में ऑलरेडी कवर्ड है उसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू वुड बी रिवाइजिंग स्टैंडर्ड बुक्स. और करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स में ना कवर हो, बिकॉज करंट अफेयर्स मैगजीन्स ऑल्सो यू वुड बी रीडिंग एंड रिवाइजिंग देम मल्टीपल टाइम्स. सो ये 20 to 30 पेजेस में ये दोनों चीजें नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक में जो कंटेंट है और करंट अफेयर्स में जो कंटेंट है, ठीक है. सो उससे क्या होगा, आपका सब्जेक्ट का विड्थ बढ़ जाएगी. देयर वुड बी वेरी फ्यू टॉपिक्स यू वोंट बी कवर्ड, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो जाएंगे. एंड वाइल रीडिंग करंट अफेयर्स ऑल्सो, विजन IAS का मंथली मैगजीन्स, यू नीड टू रीड देम लाइक 4 to 5 टाइम्स बिफोर प्रीलिम्स. ये नहीं कि 1-2 बार पढ़ लिया याद होगा, बट 1-2 बार पढ़ने में याद नहीं होगा, लाइक 4 to 5 टाइम्स यू नीड टू रीड देम, ठीक है. ये हो गया. सेम अगेन, मान ले कि अनदर वीक यू रेड इकोनॉमी, देन अगेन पिकअप ए टेस्ट ऑन संडे एंड गिव सब्जेक्ट वाइज इकोनॉमी का टेस्ट. तो ऐसा टेस्ट देना है, यू वुड बी गिविंग मॉक टेस्ट, इवैल्यूएटिंग योर परफॉर्मेंस ऑल्सो, evaluating like how well you have read the book and all, ठीक है, and you would be making notes from the test to increase your content competence, ठीक है. that then आता है previous year questions. देखो previous year questions very important, because through previous year questions only you would know important topics or how questions are framed, ठीक है, एंड हाउ पॉइंट्स आर गिवन. एंड कई बार रिपीट हो जाता है, सेम थीम और सेम क्वेश्चन इज रिपीट, लाइक समटाइम्स 2 to 3 क्वेश्चंस इन एवरी ईयर प्रीलिम्स पेपर आर रिपीटेड फ्रॉम इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. सो विजन IAS का आंसर की एक्सप्लेनेशन आता है फॉर एवरी ईयर, ठीक है. दे आर अवेलेबल इन देयर वेबसाइट, लाइक पास्ट 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनका एक्सप्लेनेशन से, गेट देम, डाउनलोड देम एंड गेट देम प्रिंट आउट. एंड वो 10 ईयर्स का आपका स्टडी टेबल में होना चाहिए. एंड वेन एवर यू आर रीडिंग इकोनॉमिक्स,
लाइक मान ले कि यू आर रीडिंग ए स्टैंडर्ड बुक. सो इकोनॉमिक्स का क्या करना है कि लाइक से 6 days you are reading economics. So first 3 to 4 hours प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ना है, एक्सप्लेनेशंस पढ़ना है, देखना है कि किस एरिया से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है. देन क्लास नोट्स पढ़ो, जो भी वीडियोस आपने देखा, क्लासेस आपने देखा, नोट्स बनाया, उसका अच्छे से रिवीजन करो. देन रीड स्टैंडर्ड बुक. ठीक है, रीड स्टैंडर्ड बुक. देन लास्ट आता है फोर्थ, दैट इज 7th डे और संडे, गिव ए मॉक टेस्ट ऑन इकोनॉमिक्स. मॉक टेस्ट ऑन इकोनॉमिक्स. तो ये शेड्यूल रिपीट होना है. 6 दिन पढ़ लिया, 7th डे टेस्ट दे दिया. ठीक है, बीच में प्रीवियस ईयर को कर लिया, ये कर लिया, स्टैंडर्ड बुक पढ़ लिया, मॉक टेस्ट एक दे दिया. अगर नेक्स्ट 6 days, लाइक मान ले कि एक हफ्ते में पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अगेन रिपीट द सेम थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्लास नोट्स, स्टैंडर्ड बुक एंड गिव इट टेस्ट ऑन 2nd डे. सो 2 हफ्ते में इकोनॉमी कवर हो जाएगा. सो इसीलिए कि सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट यू नीड टू रीड इट कंटिन्यूसली. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक करंट अफेयर्स कब पढ़ना है. सो इस फ्रेमवर्क में करंट अफेयर्स नहीं है, राइट. सो करंट अफेयर्स के लिए you need to treat current affairs as separate subject. So current affairs का monthly magazine like 2 days ले लो and read entire magazine. current affairs subject wise follow मत करो. ठीक है, जैसे विजन का करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन लिया, टेक 2 days and read magazine, like start with science and tech, then environment, then economics, then polity, then international relations, etc. ऐसा सारे सब्जेक्ट्स कवर करना है. ठीक है, सो यू नीड टू डू दिस. करंट अफेयर्स, ट्रीट करंट अफेयर्स एज ए सेपरेट सब्जेक्ट. सो इधर जब पढ़ोगे इकोनॉमिक्स, वो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, और PT 365 इकोनॉमी है, तो टेक लाइक से 3-4 days and read PT 365 of economy completely. Underline important things, highlight important things so that you can revise them afterwards. ठीक है, see, so this is the strategy for economics. So all these things you need to do. So economics के लिए क्या है, one is class notes, अगर क्लासेस लिया है तो, then is standard book. ठीक है, then मॉक टेस्ट. ठीक है, देन करंट अफेयर्स, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, और यही सब पे फोकस करना है. ठीक है, और मॉक टेस्ट का नोट्स बनाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी नोट्स होगा 20-30 पेज का, एंटायर इकोनॉमिक्स का. जो भी चीज स्टैंडर्ड बुक वगैरह में कवर नहीं है करंट अफेयर्स मैगजीन में, वो चीज नोट्स में बनाओगे. सो दैट इज हाउ यू नीड टू टैकल इकोनॉमिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर प्रीलिम्स. सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. फॉर अदर सब्जेक्ट्स का कंप्लीट एनालिसिस एंड कंप्लीट स्ट्रेटेजी, you can watch other subjects videos. Thank you very much. Bye.